یہ بتائے گا آفتاب بورکا صاحب کہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ، پری پول ایسٹیمیٹس کیا کہہ رہے ہیں، کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں، کس کا پلڑا بھاری ہے؟ دیکھیں پلڑا کس کا بھاری ہے اس میں تو obviously میں کوئی پریڈکشن نہیں کر سکتا، بس کچھ گھنٹوں کا سوال ہے، ریزلٹ سامنے آنے لگیں گے۔ دونوں پارٹیاں ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس زور لگا رہی ہیں، ظاہر سی بات ہے، اور دونوں کی پریڈکشنز اپنے حساب سے وہ کر رہے ہیں کہ وہ کافی ہوپ فل نظر آتے ہیں۔ امریکہ میں یہ جو الیکشنز ہو رہے ہیں بنیادی طور پر ہر 2 سال میں یہ سمجھے کہ الیکشن ہوتے ہیں جس میں لوور ہاؤس امریکہ کا جو ہے کانگریس کا، جیسے پاکستان میں نیشنل اسمبلی ہوتی ہے، ان کے ممبرز کی ٹرم جو ہے وہ 2 سال کی ہوتی ہے، تو وہ دوبارہ سے ریسٹ ہوتا ہے ہر 2 سال میں۔ سینٹ میں غالباً 1/3 جیسے کہ آپ نے بتایا ہوتی ہیں۔ تو اس رزلٹ کا جو بھی نتیجہ آئے گا وہ ان ایشوز پر افیکٹ کرے گا آنے والے مہینوں اور سالوں میں، جو کہ پبلک کو کافی افیکٹ کر رہے ہیں۔ اور سب سے بڑا ایشو ابھی امریکہ میں جو ہے دونوں پارٹیوں کے لیے وہ معیشت کا ہے، انفلیشن، مہنگائی، جیسے آپ نے بتایا معیشت جو ہے وہ سست ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے امریکہ کی۔ تو دونوں پارٹیز کی طرف اگر ریپبلکنز کا اس میں کانگریس میں میجورٹی آ جاتی ہے، جو کہ اس وقت نہیں ہے لوور ہاؤس میں، تو صدر بائیڈن کے لیے یہ اپنی پالیسیز کو لانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اور اگر ڈیموکریٹس اپنی میجورٹی برقرار رکھتے ہیں تو پھر وہ جو وعدے کر رہے ہیں معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے، اپنے حساب سے جو پالیسیز لے کے آنا چاہ رہے ہیں، وہ ان کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اچھا آفتاب، یہ بھی کہیے گا مڈ ٹرم الیکشن کے نتائج کا بائیڈن کی صدارت پر کوئی فرق پڑے گا؟ بائیڈن صاحب کی جو صدارت ہے وہ تو 4 سال کی ان کی ٹرم ہے، لیکن ہاں یہ ضرور فرق پڑتا ہے جب بھی امریکہ میں کیونکہ کوئی بھی نیا قانون ایکٹ پاس کرنے کے لیے آپ کو کانگریس اور کانگریس کے جو دونوں ہاؤس ہیں، سینٹ اور ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو اور پریزیڈنٹ کا اپروول چاہیے۔ اس وقت میجورٹی ڈیموکریٹس کی ہے تینوں جگہ پر جب لیجسلیشن کی بات آتی ہے۔ اگر کسی ایک چیمبر میں جو کہ لوور ہاؤس کی بات اگر کرتے ہیں، اگر اس میں وہ میجورٹی لوز کر جاتے ہیں، اگر ریپبلکنز کی میجورٹی آ جاتی ہے، تو پھر ان کے لیے، صدر بائیڈن کے لیے، کوئی نیا قانون اپروو کرانا یا ان کی پارٹی کے لیے نیا قانون لانا وہ مشکل ہو جائے گا جب تک ریپبلکنز ان کا ساتھ نہ دیں۔ ٹھیک یہی بات ریپبلکنز پہ لاگو ہوگی کہ اگر ان کی میجورٹی کانگریس میں آ جاتی ہے تو وہ اگر کوئی بل پاس بھی کر دیں تو جب تک وہ صدر اپروو نہیں کرتے، ان کی سگنیچر نہیں ہوتی، ان کے پاس ویٹو پاور ہوتا ہے، تو وہ تب تک قانون نہیں بن سکتا۔ تو یہ ایک ڈیڈ لاک کسی سچویشن ہوگی اگر ڈیموکریٹس اپنا کنٹرول لوز کر جاتے ہیں جہاں تک قانون سازی کا معاملہ ہے۔ اچھا یہ بتائے گا کہ اگر ریپبلکنز جیت جاتے ہیں، ان کا کنٹرول دوبارہ آ جاتا ہے، بحال ہو جاتا ہے، تو بتائیے گا کہ کیا فرق پڑے گا جو بائیڈن ہیں ان کی صدارت پر اور مجموعی جو صورتحال ہے امریکہ کی اس کے اوپر؟ اور یہ بھی بتائے گا کہ ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز نے کن کن وعدوں پر اپنی الیکشن مہم چلائی ہے؟ دیکھیں امریکہ میں ایک بات تو بہت انٹرسٹنگ ہے کہ کوئی بھی الیکشن ہو پچھلے دہائیوں سے اگر میں کہوں تو ہمیشہ اکانومی کا معاملہ جو ہے، معیشت کا معاملہ، جابز کا معاملہ، لوگوں کے گھر بار کیسے چل رہے ہیں، یہ معاملہ ہمیشہ ٹاپ پر ہوتا ہے، اور اس وقت بھی ہے۔ اسپیشلی یہ وبا کی صورت میں جو لاک ڈاؤنز ہوئے تھے اس سے اچھی خاصی اکانومی یہاں کی افیکٹ ہوئی ہے، لوگوں کی جابز گئی ہیں، انفلیشن، مہنگائی آئی ہے۔ تو اس سے کون سی پارٹی کس طرح ڈیل کرنا چاہتی ہے وہ بہت بڑا مسئلہ یہاں پر ہوتا ہے۔ ابھی حال ہی میں اس کے علاوہ امریکہ میں کچھ سوشل ایشوز پر بھی بڑے بڑے مسئلے سامنے آئے ہیں۔ ویمن رائٹ کے حوالے سے ابورشن کا پرٹیکولر مسئلہ جو ہے ڈیبیٹ میں کافی چلا ہے، جب سے سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا تھا جس سے ابورشن کا جو ایک نیشنل لیول کا سمجھ لیں کہ قانون تھا جس میں ابورشن الاؤڈ تھا، وہ ختم ہو گیا ہے۔ تو اب یہ ریاستوں پر بات چلی گئی ہے کہ کون سی ریاست ابورشن کو لیگل رکھنا چاہتی ہے یا انلیگل بنانا چاہتی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور ریپبلکنز اس معاملے میں اس پالیسی کے خلاف، یعنی ابورشن کے، وہ اس کو کنٹرول یعنی مزید مشکل بنانا چاہتے ہیں۔ ڈیموکریٹس اس پہ رائٹس، ویمن رائٹس کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ ان کے پاس ہونی چاہیے۔ تو یہ مسئلہ جو ہے کافی سلو ڈاؤن ہوگا اگر ریپبلکنز کے پاس بات جاتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح امریکہ میں جو معیشت کو درست کرنے کے لیے حکومت کی طرف سے اسپینڈنگ کی جاتی ہے، بہت سارے پیسے خرچ کیے جاتے ہیں مختلف پروگرامز میں، ڈیموکریٹس ان کے فیور میں ہوتے ہیں، ریپبلکنز اس کے اگینسٹ میں ہوتے ہیں جنرلی اسپیکنگ۔ تو وہ اگر ان کی میجورٹی آ جاتی ہے کانگریس میں تو یہ جو گورنمنٹ کی طرف سے اسپینڈنگ ہوگی وہ صدر بائیڈن اور ان کی پارٹی کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ جو امریکہ میں مڈ ٹرم انتخابات ہیں، 2024 میں جو انتخابات ہونے ہیں، صدارتی انتخابات، اس کے اوپر یہ کس طرح سے اثر انداز ہو سکتے ہیں، خاص طور پر جو بائیڈن کے لیے اور ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے؟ یہ عموماً مڈ ٹرم جو انتخابات ہوتے ہیں وہ یہ سمجھ لیجئے کہ ایک قسم کا ٹیسٹ رن ہوتا ہے پریزیڈنشل الیکشن کے لیے۔
یہاں سے ووٹرز کا یہاں کی جو تجزیہ کا وہ کہتے ہیں کہ نبض دیکھی جاتی ہے, ان کا ٹیمپریچر دیکھا جاتا ہے کہ اگر مڈ ٹرم میں وہ ایک کسی خاص ایشو پر یا کہ کوئی سرپرائز دیتے ہیں پارٹیز کو, یعنی کوئی پارٹی ایکسپیکٹیشن سے زیادہ ووٹ لے جاتی ہے, یا صدر جو ہے ان کی پارٹی جو بھی جس پارٹی کے بھی صدر ہیں اگر ان کو بری طرح شکست ہوتی ہے یا بری طرح یا بہت اچھی وکٹری ہوتی ہے, تو وہ ایک قسم کی نبض جانچی جاتی ہے کہ آنے والے مہینوں اور سالوں میں وہ کتنے کانفیڈنٹ ہو کر جاتے ہیں پریزیڈنشیل الیکشن میں. تو اس معاملے سے یہ ضرور اس کو ایک قسم کا سمجھے کہ ریفرینڈم تصور کیا جاتا ہے سٹنگ پریزیڈنٹ کے لیے, کرنٹ پریزیڈنٹ ہیں, اور اگر ان کو دھچکا پہنچتا ہے, اگر ان کے لیے یہ ریزلٹس اچھے ثابت نہیں ہوتے, تو ان کے لیے 2024 کا الیکشن جو ہے پھر یہاں کے تجزیہ کاروں کے مطابق بہت زیادہ انہیں محنت کرنا پڑ سکتی ہے لوگوں کو کنونس کرنے کے لیے, اپنی پالیسی جو ہیں ان کو سیل کرنے کے لیے. تو یہ ایک انٹرسٹنگ معاملہ ہوگا دیکھنا کہ آج کا جو ریزلٹ ہوگا وہ ڈیفینیٹلی سیٹ کرے گا سٹیج 2024 کے الیکشن. آفتاب یہ بھی کہے گا سروے کیا گیا اور سروے میں یہی آیا کہ ڈیموکریٹس اپنی جو مقبولیت ہے وہ کھو رہا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا وہ امریکی مایوس ہے اس حوالے سے؟ نہیں دیکھیں, یہ سرویز تو ہر مڈ ٹرم الیکشن میں یہ سمجھ لیں کہ گراف ہے, سینٹیمنٹس لوگوں کے چینج ہوتے رہتے ہیں, اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں, کبھی ریپبلکنز اپنی پاپولیرٹی کھو دیتے ہیں, کبھی ڈیموکریٹس کھو دیتے ہیں, ڈپینڈنگ آن اس وقت کیا ایشوز چل رہے ہیں. اس وقت یس لک ایسا رہا ہے کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اکانومی جو ہے وہ تمام شہریوں کو افیکٹ کرتی ہے, لوگوں کی جیب پر دھچکا پہنچتا ہے کسی بھی وجہ سے اور وہ پنچ ہونے لگتی ہے, اس پہ تکلیف آتی ہے, لوگوں کو اپنے گھر چلانے میں مشکل پڑتی ہے, مہنگائی ہوتی ہے, تو ڈیفینیٹلی جو وقت حکومت ہوتی ہے اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے لوگوں کو obviously خوش رکھنا یا ان کو کنونس کرنا, یہ بتانا کہ وہ کس طرح ملک چلا رہے ہیں. تو کوئی بھی سٹنگ گورنمنٹ کے لیے اس قسم کے معاشی حالات آئیں تو ان کے لیے ہمیں دیکھا ہے اکثر پہلے بھی دہائیوں میں امریکہ میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے ان کے لیے. ٹھیک ہے آفتاب, آپ ہمارے ساتھ موجود ہی رہے گا. واشنگٹن ڈی سی سے ہمیں جوائن کریں گے اویس سلیم صاحب ہوں گے ہمارے ساتھ, سینئر تجزیہ کار ہیں, انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں, ان سے جانتے ہیں. جی بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اویس صاحب آپ کا بتائیے گا کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ان انتخابات کو؟ جی دیکھیے, کافی تفصیل آپ نے بتا دی ہے کہ بنیادی ایشوز اس الیکشن میں کیا ہیں, لیکن میں اگر اس میں کچھ اضافہ کروں تو صرف یہ کر سکتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے کہ مڈ ٹرم الیکشن کی ایک اپنی سگنیفیکنس ہوتی ہے, ان کے حوالے سے پھر پروجیکشن کی جاتی ہے. اویس سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور ان سے اس بارے میں مزید جانیں گے کہ ان کا تجزیہ کیا کہتا ہے. آپ کو ہم بتا رہے ہیں ریپبلکن یا ڈیموکریٹس یہ ایک بڑا مقابلہ ہو رہا ہے. امریکہ میں مڈ ٹرم الیکشن کا میدان سج چکا ہے. آفتاب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. جی آفتاب بتائے گا کہ کس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں کہ 2024 کے جو صدارتی انتخابات ہوں گے, جو بائیڈن ہیں ان کی مقبولیت میں کمی دیکھی گئی ہے, آپ نے اس کے اوپر بات بھی کی ہے, لیکن کیا وجوہات ایسی ہوئی کہ ان کی اپروول ریٹنگ میں کمی ہوئی؟ جی جیسے میں نے آپ کو بتایا, یہ اپروول ریٹنگ کے جو پولز امریکہ میں ہوتے ہیں وہ وقتاً فوقتاً ہوتے رہتے ہیں, خاص ٹرم سے 2-4 مہینے جو بھی مختلف قسم کے پولسٹرز ہوتے ہیں, تو یہ لوگوں کے پاس بار بار جاتے ہیں خاص عرصے کے بعد ان کی فیلنگ لینے کے لیے کہ ابھی اس وقت آپ اگر کرنٹلی پریزیڈنٹ آپ کے پاس آتے ہیں, اگر کرنٹلی آپ کو جو سٹنگ پریزیڈنٹ ہیں ان کے لیے ووٹ کرنا پڑے تو موجودہ حالات دیکھ کر آپ ان کو کتنا اپروو کرتے ہیں. یعنی وہی ہے جس طرح کہ اگر آپ کہیں نوکری کر رہے ہیں تو پرفارمنس ریویو آپ کا ہوتا ہے, یا ہر سال بعد 6 مہینے بعد اگر آپ کو دیکھا جاتا ہے تو بیسیکلی پریزیڈنٹ کی پرفارمنس لوگوں کو پوچھی جاتی ہے. اور اس وقت جو امریکہ میں حالات چل رہے ہیں پچھلے 6-8 مہینے سے, سال سے یا 2 سال سے, جب سے بھی ان کی پریزیڈنسی ہوئی ہے, ایون اس سے پہلے بھی, تو نمبر 1 جو اکانومی کی صورتحال ہے, لوگوں کی جابس یا مہنگائی جو ہے ایک وہ سب سے بڑا افیکٹ کر رہی ہے لوگوں کی اس ڈیسیجن کو, وہ کہ کسی بھی آفیشل کو اپروو کرتے ہیں ڈس اپروو کرتے ہیں. اس کے علاوہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دوسرے ایشوز جو یہاں پہ سوشل ایشوز کی موومنٹ امریکہ میں چل رہی ہے وہ کافی پولرائزنگ ہے کئی سالوں سے, اور ابھی حال ہی میں جو ویمن رائٹ کے حوالے سے بات ٹھیک ہے آفتاب, آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. ہمیں سینئر تجزیہ کار اویس سلیم صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, ان سے بات کرتے ہیں. سر کہیے گا, الیکشن ہو رہے ہیں مڈ ٹرم امریکہ میں, آپ اس الیکشن کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی دیکھیے, 2016 سے امریکہ کے اندر جو ڈونلڈ ٹرمپ کا رائز ہوا ہے اس سے امریکہ کے اندر ایک جو واضح ڈویژن آئی ہے جس کو آج دہرایا بھی ہے صدر بائیڈن نے اپنے پیغام میں. انہوں نے کہا کہ امریکہ جو ہے جس کو میں جانتا ہوں وہ ہوپ کا
और यूनिटी का अमेरिका है, जबकि जिस वोटर को डोनाल्ड ट्रंप की क़यादत में रिपब्लिकन पार्टी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती रही है, वो एक वाइट क्रिश्चियन कंजर्वेटिव वोटर बेस है। अब उस डिवीजन में जो माइनॉरिटीज हैं इस मुल्क के अंदर, उनका किरदार बड़ा अहम हो जाता है, क्योंकि 2016 के जो सदारती इंतखाबात हुए थे उनके अंदर माइनॉरिटीज के नंबर्स तकरीबन वही थे जो हर इलेक्शन में होते हैं, और सदर ट्रंप फिर उसके नतीजे में सदर बन गए। लेकिन 2020 के जब हम इंतखाबात हुए उसमें माइनॉरिटीज ने फिर अपने किरदार को रिकग्नाइज किया, उनके नंबर्स बढ़े, और हमने देखा कि उसके नतीजे में बहुत सी वो स्टेट्स जो ट्रेडिशनली रिपब्लिकन होती हैं वो फ्लिप हुई। अब इस वक्त जैसे आफ्ताब आपको बता रहे थे, मिड टर्म इलेक्शंस हैं, और मिड टर्म इलेक्शंस के बारे में यही समझा जाता है कि वो वोटर का एक सेंटिमेंट आपको बताएंगे कि वो इस सदारती टर्म के जो 4 साल होते हैं उसके पहले 2 साल से कितने मुतमईन है। ये बात पार्शली दुरुस्त है, लेकिन इसमें एक फैक्टर ये भी है कि जो आपके सेनेटर या आपके कांग्रेसमैन मुंतखब होते हैं अपनी अपनी स्टेट से, उनके बैलेट्स पर लोकल इश्यूज जो हैं वो भी मौजूद होते हैं कि लोग अपने लोकल कम्युनिटी के जो इश्यूज हैं उनको किस तरह से देख रहे हैं। ये ठीक है कि इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर इकोनॉमी के हवाले से और सदर बाइडेन की इकोनॉमिक पॉलिसीज के हवाले से एक नेगेटिव सेंटिमेंट मौजूद है। इकोनॉमी जो है वो कई महीने से ऐसे लगता है कि जमूद का शिकार है, तो उसमें तेल की कीमतों का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो यहाँ पर 2008 का जो एक फाइनेंशियल मेल्टडाउन था, उस तरह के एक और मेल्टडाउन की बातें ऑलरेडी शुरू हो गई हैं। स्टॉक मार्केट जो है वो जमूद का शिकार है। सो ये एक ऐसा इशू है जिसने इस वक्त डेमोक्रेटिक पार्टी को जो है वो खासी हद तक मुश्किल में गिरफ्तार कर रखा है, और उनके पास इसका फौरी कोई हल नहीं है। ठीक है, फौरी कोई हल नहीं है। वैसा लोकल सोशल इश्यूज के ऊपर भी आपसे मजीद बात करेंगे, लेकिन एक बात सामने आई है कि 2018 हो, 2014 हो, 2010 हो, जब भी मिड टर्म इंतखाबात हुए हैं, जो गवर्नमेंट होती है, जो पार्टी हुकूमत में होती है, उनको धचका पहुंचता है, वो हार जाते हैं कहीं ना कहीं पर किसी ना किसी सूरत। तो क्या ऐसा नजर आ रहा है कि इसमें भी जो बाइडेन की जो पार्टी है उसको हार का सामना करना पड़ सकता है कहीं पर? जी, ये बिल्कुल ऐसा मुमकिन है, और अगर ऐसा हुआ तो बिल्कुल आपके दूसरे गेस्ट बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि अगर ऐसा हुआ तो सदर बाइडेन को और उनकी जमात को नई लेजिस्लेशन में, कानून साजी में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि उसको हर मुमकिन तरीके से रिपब्लिकन पार्टी रेजिस्ट करने की कोशिश करेगी। लेकिन उसके नतीजे में फिर जो दूसरे इश्यूज हैं जिन पे कोई ना कोई विगल रूम ढूंढ सकती है डेमोक्रेटिक पार्टी, जैसे कमाला हारिस ने एक दिन पहले ही, जो वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका की, उन्होंने ट्वीट किया कि अगर हम अक्सरियत लेने में कामयाब हो गए तो हम जो अबॉर्शन राइट्स हैं उस पर कानून साजी पर अमल दरामद करेंगे। तो इस तरह की पोजीशन से फिर उनको पीछे हटना पड़ेगा, और गिव एंड टेक जो है वो करके और कुछ ना कुछ कानून साजी जो है वो अपने मतलब की करवानी पड़ेगी। अगर ऐसा भी ना हो सका तो फिर अमेरिकी सदर को जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंसेस हैं वो जारी करने पड़ेंगे किसी कानून साजी के लिए या उन इक़दामात के लिए जो वो करना चाहते हैं, और उससे जाहिर है कि गवर्नेंस सदर के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी कहता चलूं कि ये जरूरी नहीं है कि अगर एक जमात मिड टर्म इलेक्शन हार जाती है तो उसके बाद उसके नेगेटिव जो इफेक्ट्स हैं वो अगले सदारती इंतखाब पर पड़े। और डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए जो सबसे बड़ी एग्जांपल है इसकी, वो 1994 के मिड टर्म इलेक्शन है, जब सदर क्लिंटन अपनी पहली टर्म गुजार रहे थे, तो डेमोक्रेटिक पार्टी उन मिड टर्म इलेक्शंस में बड़ी बुरी तरह हार गई थी। लेकिन उसके बावजूद सदर क्लिंटन जो है वो 1996 के सदारती इंतखाबात में दोबारा अपनी जो सदारती मुहिम है उसको कामयाब बनाने में जो है वो कामयाब हुए थे। सर, आपको ऐसा क्या लगता है, मतलब रिपब्लिकन अपनी पॉलिसी में ऐसी क्या चीज़ें लेकर आएगी जो डेमोक्रेटिक्स हुकूमत में जो मसाइल पैदा हो रहे हैं, महंगाई, मईशत, क्या वो आवाम को कायल कर सकेगी अपनी तरफ?
देखिए, रिपब्लिकन पार्टी ने पॉलिसी इस वक्त नहीं बनानी है, क्योंकि अमेरिका में सदारती निज़ाम है और पॉलिसी जो है वो अमेरिकी सदर की ही रहेगी। वो सिर्फ उस पॉलिसी के बनाए जाने में जी। और उसके हवाले से कानून साजी करने और उस पर अमल दरामद करने में रखना जरूर डाल सकते हैं, उसको मुश्किल जरूर बना जी। सकते हैं, जिसकी वो हर हद तक कोशिश करेंगे अपने वोटर को अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है अवैस साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। एक दफ़ा दोबारा रुख करेंगे आफ्ताब का। आफ्ताब, ये कहिएगा, रिपब्लिकन्स की जानिब से गुज़श्ता सदारती इंतखाबात पर काफ़ी सवालात उठाए गए थे कि जो उनके कुछ रियासतों में जो इलेक्शन हुए हैं वो गैर शफाफ हैं। तो आप क्या देख रहे हैं मजमूई तौर पर रिपब्लिकन्स के क्या तासुरात हैं? आफ्ताब, क्या आप हमें सुन सकते हैं? जी, आपकी आवाज अब मुझे आई है। I'm sorry, अच्छा आपका आधा आफ्ताब, क्वेश्चन ये कट कहिएगा कि रिपब्लिकन्स की जानिब से गुज़श्ता सदारती जो इंतखाबात हुए थे, सवालात कुछ उठाए गए थे कि जो कुछ रियासतों में इंतखाबात हुए हैं वो गैर शफाफ हैं। तो क्या लगता है मजमूई तौर पर रिपब्लिकन्स के हामियों के क्या तासुरात हैं? जी, ये इल्ज़ामात और ये कंसर्न जो हैं रिपब्लिकन जो उस वक्त सदारती कैंडिडेट थे डोनाल्ड ट्रंप, उनकी तरफ से उठाए गए थे। जी। और न सिर्फ उठाए गए थे, तरफ से मुल्क भर में मुख्तलिफ अदालतों में ये केसेस भी लेके जा चुके थे वो लोग मुख्तलिफ अदालतों में, और उस पर अदालत अभी तक केस जी आफ्ताब, हम आपको सही तरह से सुन नहीं पा रहे, आपसे मजीद बात करने की कोशिश करेंगे। अवैस साहब, क्या आप हमें सुन सकते हैं? जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। जी अवैस साहब, ये बताएगा कि क्या हम ये अस्यूम कर सकते हैं अगर रिपब्लिकन्स जीतते हैं तो एक बार फिर इस पार्टी में डोनाल्ड ट्रंप का राइज होगा, राइज ऑफ डोनाल्ड ट्रंप होगा, और अगर डेमोक्रेट्स हार जाते हैं तो ये फॉल ऑफ जो बाइडन होगा? जी देखिए, आप ये दोनों चीजें जो है वो अपनी अपनी जगह दुरुस्त हैं, जिनको एनालाइज किया जाना चाहिए। क्योंकि जब सदर ट्रंप व्हाइट हाउस से रुखसत हुए थे तो ये बारहा कहा गया था, अमेरिकी मीडिया में इस पर बहुत बात हुई थी कि डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस से रुखसत हुए हैं, लेकिन ट्रंपिज्म जो है वो अमेरिका से नहीं गया है। जी। क्योंकि जो टेम्पलेट पॉलिटिक्स की डोनाल्ड ट्रंप ने इख्तियार की थी, उस पर अमल करते हुए बहुत सारे जो कांग्रेसमैन हैं, सेनेटर्स हैं, उन्होंने उस राह पर उसके बाद चलने की कोशिश की, जिसमें फार राइट, फार कंजर्वेटिव जो पोजीशंस थी उन्होंने इश्यूज पर ली। और अब अमेरिका के अंदर ये कहा जाता है कि अगर किसी उम्मीदवार सेनेटर को या उम्मीदवार कांग्रेसमैन को डोनाल्ड ट्रंप की एंडोर्समेंट हासिल हो जाती है तो उसके जीतने के इम्कानात खासे बढ़ जाते हैं। और साबिक सदर ट्रंप जो हैं वो ये वाज़ेह तौर पर इशारा दे चुके हैं, वो कैंपेन रैलीज कर रहे हैं, वो मुख्तलिफ स्टेट्स में जा रहे हैं। इवन इलेक्शन से 2 दिन पहले पेंसिल्वेनिया, जो बहुत एक बैटल ग्राउंड स्टेट इस वक्त समझी जा रही है, एक ही दिन में वहाँ डोनाल्ड ट्रंप भी मौजूद थे, जो बाइडन भी मौजूद थे और बराक ओबामा भी मौजूद थे। यानी उन्होंने अपनी प्रेजेंस जो है डोनाल्ड ट्रंप ने वो बिल्कुल रखी हुई है, वो एक्टिव हैं, और वो ये इंडिकेट कर चुके हैं कि अगर वो इन इलेक्शंस में अपनी पार्टी को जितवाने में कामयाब हो जाते हैं, अक्सरियत दिलवाने में कामयाब हो जाते हैं, तो ऐन मुमकिन है कि चंद दिन के बाद, जहाँ पर थैंक्सगिविंग की छुट्टियां आ रही हैं, उन छुट्टियों से पहले या फौरन बाद वो 2024 के सदारती इंतखाबात के लिए अपनी कैंडिडेसी अनाउंस कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर आप जो आपके सवाल का दूसरा हिस्सा था जो बाइडन से मुतल्लिक, जब जो बाइडन 2020 में कैंडिडेट बने थे और सदर मुंतखब हुए थे, उस वक्त भी ये डिबेट बहुत ज्यादा हुई थी कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पसंदीदगी की वजह से जो बाइडन को वोट दिया है, या उन्होंने इसलिए उन्हें वोट दिया है क्योंकि वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए वोट नहीं करना चाहते थे। सो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर इस वक्त जो फॉर्चून्स हैं डेमोक्रेटिक पार्टी की वो नीचे जाती हैं, तो हमें ये भी देखना होगा कि शायद उन लोगों की तवक्कुआत इन 2 साल में पूरी नहीं हुई, और फिर उसके नतीजे में क्या जो बाइडन दोबारा, जो कि एक ट्रेडिशन है यहाँ पे कि दूसरी टर्म के लिए भी सदारती उम्मीदवार जो है वो मैदान में आते हैं, जो जिनके पास व्हाइट हाउस होता है उस वक्त,
क्या जो बाइडन दोबारा सदारती उम्मीदवार 2024 में बन सकते हैं या नहीं। सो ये तमाम सवालात मेरा ख्याल है कि आज के इलेक्शन के नतीजे से जुड़े हुए हैं। सही, अगर रिपब्लिकन्स जीत जाते हैं, कानून साजी के अलावा कहां कहां पर मुश्किलात पैदा हो सकती हैं प्रेसिडेंट के लिए? रिपब्लिकन्स कहां कहां पर मुश्किलात पैदा कर सकते हैं हुकूमत के लिए? देखिए, आपको उसके लिए अमरीकी जो निज़ाम हुकूमत है उसको समझना होगा। एक तो अमरीकी जाहिर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट है जिसमें सदारती निज़ाम है और सदर जो है वो अपनी मर्जी की टीम मुंतखब करता है और हुकूमत उस हिसाब से चलाता है। वहाँ पर अगर सदर के पास, क्योंकि पहले आपकी जिस तरह हमारे पाकिस्तान में पहले नेशनल असेंबली में कोई बिल जाता है, फिर सेनेट में जाता है, या पहले कांग्रेस में जाता है और फिर सेनेट में जाता है मंजूरी के लिए, वो मंजूरी जो है वो बड़ी मुश्किल हो जाएगी फिर डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए। और उन्हें अगर वो लेजिस्लेशन करवानी है, वो बिल मंजूर करवाने हैं, तो फिर उन्हें अपनी जो एंकर पोजीशन है उसको छोड़कर गिव एंड टेक, जैसे मैंने कहा, करना पड़ेगा रिपब्लिकन पार्टी के साथ और उनकी पोजीशन के करीब तर आकर अपनी बात मनवानी पड़ेगी। दूसरा जो उसका फिर हल होगा वो अमेरिकी सदर के पास ऑर्डिनेंस जारी करने का इख्तियार है। अगर ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है जिसमें डेडलॉक बहुत वाज़ेह हो जाता है तो फिर वो अपना ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। वो किस हद तक कानून में उसकी गुंजाइश है और वो कितने लंबे अरसे तक हो सकता है, इसका बेहतर जवाब जो है वो कोई वकील दे सकता है या कोई कानून साज दे सकता है। दूसरा उसका जो पहलू है, अमेरिका के अंदर तमाम स्टेट्स जो है वो ऑटोनमस हैं, वो अपनी कानून साजी कर सकती हैं, वो अपनी जो है पॉलिसीज बना सकती हैं और उन पॉलिसीज के जरिए वो चैलेंज कर सकती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, जिस तरह उन तमाम स्टेट्स में जहां पिछले 2 साल में, मसलन मैं टेक्सास में रहता हूं, हमारा गवर्नर जो है वो रिपब्लिकन है और वो बारहा ऐसी पॉलिसीज बनाते रहे हैं और जारहाना पोजीशंस इख्तियार करते रहे हैं जो फेडरल गवर्नमेंट की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को की पोजीशन को चैलेंज करती हैं। सो इस तरह की मुख्तलिफ स्टेट्स में अगर अक्सरियत सामने आती है जो रिपब्लिकन पार्टी है उसकी, तो मेरा ख्याल है कि वहाँ भी एक ऐसी बिसात बिछ जाएगी जिसकी वजह से डेमोक्रेट्स को अगले सदारती इलेक्शन में 2 साल के बाद मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। सही। अवैस साहब, आपसे जो बैनुल-अक़वामी हालात हैं, अमेरिका के ये जो मिड टर्म्स हो रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ लोकल इश्यूज हैं उनके ऊपर बात करना ज़रूरी है। ये बताएगा कि काफ़ी हालिया अमेरिका में हमने देखा है कि पोलराइजेशन काफ़ी देखने में आई है, ख़ासतौर पर 2016 से लेके अब तक। ट्राइबल कम्युनिटीज़, कुछ और इश्यूज हैं, इमिग्रेशन, क्लाइमेट चेंज, गन कंट्रोल, चाइल्ड पॉवर्टी, कॉस्ट ऑफ लिविंग है, और इसके बाद इकोनॉमी है। कौन से ऐसे इश्यूज हैं जो इफेक्ट हो सकते हैं इसके ऊपर? देखिए, ये तमाम इश्यूज जिनका आपने तज़किरा किया, गन कंट्रोल है, कैपिटल पनिशमेंट है, ये तमाम वो इश्यूज हैं जिन पे ट्रेडिशनली एक डिवाइड पाई जाती है। ओवरराइड कर रहा है अमेरिका के अंदर पॉलिटिकल सेंटिमेंट को वो इकोनॉमी है। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि 2020 में जब सदारती इलेक्शंस हुए थे कोविड के दरमियान, उस वक्त भी इकोनॉमी की सूरत हाल कोई इतनी अच्छी नहीं थी, और अगर उस वक्त इकोनॉमी कोविड की वजह से इफेक्ट ना होती। अवैस सलीम साहब हमारे साथ मौजूद थे और तमाम तर सूरत हाल के ऊपर, अमेरिका के जो मिड टर्म्स इंतखाबात हो रहे हैं उसके ऊपर अपनी राय पेश कर रहे थे, तजिया पेश कर रहे थे। न्यूयॉर्क से हमारे साथ मौजूद हैं साहबात ज़िक्रिया साहिबा। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए आपका। बताइएगा सबाह ज़िक्रिया साहिबा, किस तरह से इन इलेक्शन को देख रही हैं और क्या एस्टिमेट्स बता रहे हैं, किस तरह का पोलिंग का अमल जारी है? मैंने आज सारा दिन ब्रुकलिन में गुजारा। ब्रुकलिन न्यूयॉर्क का एक ऐसा इलाका है जिसके कुछ इलाकों में बड़ी तादाद है मुसलमानों की और ख़ास तौर पर पाकिस्तानियों की। उनसे जब हमने बातचीत की तो कुछ दिलचस्प चीज़ें सामने आईं। उनमें से एक तो ये थी कि बहुत से पाकिस्तानी जो यहाँ पर हैं वो आम तौर पर ट्रेडिशनली, ख़ास तौर पर नए इमिग्रेंट्स होते हैं, वो वोटिंग प्रोसेस में बहुत ज़्यादा हिस्सा नहीं लेते, क्योंकि उनका ख्याल ये है कि हमारे वोट करने से क्या होगा। और बहुत से ऐसे भी हैं जिनको ज़बान का मसला भी होता है, उस बैरियर की वजह से थोड़ा सा घबराते हैं पोलिंग स्टेशन जाते हुए।
लेकिन बहुत सी यहाँ पे तंजीमें ऐसी हैं जो पे काम कर रही हैं ऐसे लोगों को वोटर टर्नआउट उनका बढ़ाने के लिए, ताकि उनकी भी आवाज़ सामने आ सके। उन लोगों से जब हमने बात की तो उनमें से कुछ ने ये बड़ी इंटरेस्टिंग बताया हमें। यार मेरी बैटरी बिल्कुल लो पे आ रही है। सबाह ज़िक्रिया साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं और तमाम तर सूरत हाल से हमें अपडेट कर रही हैं और बता रही हैं इन इलेक्शंस के हवाले से कि जो इमिग्रेंट्स हैं, जो मुसलमान वहाँ पर मुकीम हैं, वो किस तरह से इन इलेक्शंस में हिस्सा ले रहे हैं। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि मुद्दत इंतखाबात के हवाले से जो है मुहिम भी जारी है और इस हवाले से हमें हमारी जो सबाहत नुमाइंदा है हमें बता रही थी कि किस तरह से जो वोटर्स हैं वो आ रहे हैं, पोलिंग स्टेशंस का रुख करें, उनकी तरफ दोबारा रुख करेंगे, उनसे बात करेंगे। अच्छा सबाहत, ये कहिएगा कौन कौन सी रियासतें ऐसी हैं जहां डेमोक्रेट्स या रिपब्लिकन्स में कड़ा मुकाबला देखने में आ रहा है? जी, न्यूयॉर्क आमतौर पर तो डेमोक्रेटिक स्टेट रहती है, यहाँ पर उतना ज़्यादा नहीं होती लोगों को अपने डिसाइड करने के लिए कि वो डेमोक्रेट्स की तरफ वोट करेंगे या रिपब्लिकन्स की तरफ, क्योंकि ज़्यादातर ये डेमोक्रेट्स ही को वोट करते हैं। लेकिन जब हमने लोगों से बात की वहाँ पर जो ऑन द ग्राउंड इन चीज़ों पर काम करते हैं, तो उन्होंने कहा कि ओवर टाइम और खासतौर पर इन इलेक्शंस में ये देखा जा रहा है कि इमिग्रेंट्स का रुझान, उन्होंने खासतौर पर पाकिस्तानियों का रुझान जो है वो डेमोक्रेट से हटकर कुछ ना कुछ रिपब्लिकन्स की तरफ भी जाना शुरू हुआ है इस इलेक्शंस में। और उसकी कुछ वजूहात बड़ी दिलचस्प हैं। उनमें से एक ये भी है कि बहुत से ऐसे लोग जो कि पाकिस्तान में एक खास किस्म की सपोर्ट रखते हैं, खास फॉर इंस्टेंस जो लोग पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान में, वो यहाँ पर इस वक्त कुछ हद तक जो बाइडन से नाला हैं, वो इस बात पे थोड़ा सा नाला है कि जो इम्पोर्टेड हुकूमत वाला जो एक बयानिया है उसके हवाले से, और उनका ये ख्याल है कि वो रिपब्लिकन वोट करना चाहते हैं ताकि जो उनके जहन में जी कुछ अभाम है जो बाइडन को लेकर, वो जो उसके हवाले से वो रिपब्लिकन पार्टी की तरफ उनका झुकाव थोड़ा बढ़ रहा है। अच्छा सबाहत, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। एक दफ़ा हमें दोबारा से ज्वाइन किया है आफ्ताब साहब ने। जी आफ्ताब साहब, ये कहिएगा आप पाकिस्तानी कम्युनिटी की इंटरेस्ट लेवल क्या देख रहे हैं? उनका इंटरेस्ट लेवल डेमोक्रेटिक्स की तरफ है या रिपब्लिकन्स की तरफ है? देखिए, ये जनरली यहाँ पे किसी भी इतनी बड़ी कम्युनिटी को किसी एक बॉक्स में रखना आई थिंक बहुत ही सिंपलीफाइड वो अप्रोच होगी। यहाँ पे भी जितने रहने वाले हैं और डिपेंडिंग ऑन कौन सी रियासत में रहते हैं, वो इशू बाय इशू जो है चीज़ों को देखते हैं। ना ऑब्वियसली ये ज़रूर डिपेंड करता है कि उस इशू पे किसी भी इंडिविजुअल की या किसी ग्रुप की कितनी इंफॉर्मेशन है। अगर ये जो कम्युनिटी है उनसे फील तो वो ये होता है इशू बेस्ड पॉलिटिक्स होती है, और बड़े इशू पर इकोनॉमी के बाद अपनी हवाले से और इन्फ्लेशन के हवाले से के बाद अगर लोकल लेवल पर इशूज देखने जाए, सोशल इशूज पर ज़्यादा उनकी बहुत ज़्यादा देखने में आती है। क्या एजुकेशन के हवाले से जो इशूज हैं, या लोकल जो उनको अपनी स्टेट की तरफ से कितना आसान या मुश्किल बनाया जाता है अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को, अगर किसी या लोकल कोई एजुकेशन या सेंटर को डेवलप करने का मसला आ गया, तो इन इश्यूज पर मजबूत तौर पर ऑब्वियसली इमिग्रेशन का भी एक बहुत बड़ा मसला होता है। जो इमिग्रेंट जाती है यहाँ पर, उनको भी एक उम्मीद होती है हुकूमत कि वो इमिग्रेशन कवानी स्पेशली इमिग्रेंट में आने वाले हैं उनको लेकर नरमी इख्तियार करें या पॉलिसी ऐसी बनाएं वो ज़्यादा हों और लोगों के लिए कम से कम उसमें डेमोक्रेसी को फिट करना पड़े। ठीक है, कोई एक फैक्टर नहीं है आफ्ताब साहब, अब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, कुछ लोकल इश्यूज होते हैं, कुछ इंटरनेशनल इश्यूज होते हैं जो कि इंतखाबात पर असरअंदाज होते हैं। आफ्ताब बोरका साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सबाह ज़िक्रिया साहिबा, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया।